ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਰਥ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 3rd ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ, classification of magnetic materials. Classification of magnetic materials. Magnetic materials ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ I ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਿਊਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਬਟ ਐਂਟਾਇਰਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਰਮ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਟਰਮ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। extent to which a specimen is magnetized. Magnetized when placed in magnetic field. ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ? ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਮਨ ਨੂੰ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਇਰਨ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਏ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਪੈਸੀਮਨ ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮੀਨਸ extent to which a specimen is magnetized when placed in a magnetic field. ਆਇਰਨ ਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਮਨ ਹੈ, ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਸਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ a magnetic material is defined as the magnetic moment per unit volume. Magnetic moment per unit volume. ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੋਮੈਂਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੋਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ I is equal to ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੋਮੈਂਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੋਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੇਸ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, नॉर्थ पोल। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरी साइड तो की लगेगा क्लॉकवाइज करंट मीन साउथ पोल है। तो मैगनैटिक मोमेंट की कहती है कि जिहड़ा करंट मैगनैटिक मोमेंट है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
करंट फ्लोइंग, कितना उस लूप दे विचों करंट फ्लो कर रहा है तो कितना एरिया है। अगर असी उसदियां नंबर ऑफ टर्न्स नू एन लैके चलीए तो मैगनैटिक मोमेंट किस दे इक्वल आ जाएगी एन ए आई ए, कितना करंट है, कितना एरिया है तो कितनियां नंबर ऑफ टर्न्स ने। क्लियर। सो मैगनेट इंटेंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन की है किसी भी मैगनेटिक मटीरियल दी मैगनेटिक मोमेंट कितनी है उसके पर यूनिट वॉल्यूम दे विच। क्लियर। तो सानू ये भी पता है कि जेड़ा मैगनेटिक मोमेंट है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू m इंटू 2l। सो इत्थे असी स्पेसीफाई करांगे कि m की है तो 2l की है। नो डाउट असी पढ़ चुके हैं बट फिर भी कई बार साडे माइंड दे विचों चीज़ां स्किप हो जांदियां ने। m इत्थे की है पोल स्ट्रेंथ, किसकी पोल स्ट्रेंथ मीनस अगर असी कोई बार मैगनेट लईए उसके दो पोल्स होंगे ने, एक साउथ पोल दूसरा नॉर्थ पोल। सो इस दे विच साउथ पोल की स्ट्रेंथ भी m है तो नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ भी m है। तो मैगनेटिक मोमेंट कितनी है m, किसी भी एक पोल की स्ट्रेंथ, डिस्टेंस कितनी है दोनों के विच 2l। सो m इंटू 2l। तो सानू पता है वॉल्यूम की हुंदा है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जदों असी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिखते हैं तो लेंथ इंटू लेंथ की बन जाता है एरिया। सो दूसरी जी लेंथ बचती है उन्होंने अलग तो लिखांगे। सो इट विल बिकम एरिया इंटू लेंथ। सो असी अगर लेंथ लेने 2l मीनस कोई पैरेललोपिपेड इस तरह नहीं लेने जिदी हर साइड की है 2l है। सो दो साइड्स नू असी मल्टीप्लाई करके उसनू एरिया लिख लिया मीनस 2l इंटू 2l 4l स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया स्मॉल ए। तो तीसरी लेंथ केड़ी है साडे कोल 2l। सो इसनू असी किवें लिख सकते हैं m इंटू 2l एरिया इंटू 2l। सो दिस विल बिकम कैंसल आउट। सो m अपॉन a। सो हियर m इज पोल स्ट्रेंथ एंड a इज एरिया। सो जेडी थोड़ी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो की बन जाती है, उसकी दूसरी डेफिनेशन की है पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल अपॉन एरिया। एक ही बन जाएगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर। सो इसी तरह असी इसके यूनिट्स नू भी डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट्स ऑफ आई मैग्नेटिक मोमेंट दे यूनिट्स की होंदे ने एम्पेयर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम दे की होंदे ने मीटर क्यूब। सो इट विल बिकम एम्पेयर पर मीटर। सो ये आ जाएंगे यूनिट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दे। क्लियर। सो एक बार फिर देख लें कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की है कि अगर असी किसी भी स्पैसीमन नू मैगनेटिक फील्ड दे विच रखिए तो वो स्पैसीमन कितना मैगनेटाइज हो जाएगा, वो उसकी इंटेंसिटी होएगी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैगनेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। थोनू पता है मैगनेटिक मोमेंट की होंदी है किसी भी एक बार मैगनेट दी पोल दी स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी पोल्स। वॉल्यूम क्यों होंदा है एरिया इंटू लेंथ। अगर असी पैरेललोपिपेड लीए या क्यूबॉइड लीए जिदी लेंथ हर साइड दी 2l है दैन इट विल बिकम m इंटू 2l अपॉन a इंटू 2l। 2l नाल कैंसल हो गया m अपॉन a। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया भी हो सकती है। तो यूनिट्स असी देखे कि आए ने एम्पेयर पर मीटर। क्लियर। सो यह है फर्स्ट टर्म इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दी। ठीक है। इसी तरह असी सैकेंड टर्म डिफाइन करांगे जो कि ये मिलती जुलती तो है नेम वाइज बट मीनिंग उसका एंटायरली डिफरेंट है। ठीक है। एक ही है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है। हुण असी पढ़ांगे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की होंदी है।
या इंटेंसिटी ऑफ मैगनैटिक फील्ड, जिसनों ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इंटेंसिटी ऑफ मैगनैटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की ਹੁੰਦੀ ਹੈ। देखो टर्म्स ਦੇ नेम बहुत मिलते जुलते हैं, बट ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ मीनिंग क्लीयर करांगे वो बहुत ही डिफरेंट बन जाता है। देखने को सेम लगता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। सो सेकेंड टर्म है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, और जिसनों ਅਸੀਂ कहने ਆ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। और इसनों डिनोट करांगे असी एच दे, कैपिटल एच दे। सो सब तो पहला असी देखते हैं कि इसका मीनिंग की है। ठीक है, देखो सानू ये पता है कि जदों भी कोई चार्ज मूव करता है तो करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो जिथे करंट होएगा उत्थे मैग्नेटिक फील्ड भी होएगा, जो कि असी हुण तक स्टडी करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर असी ये देखना होवे कि किसी जगह ते कितना फील्ड है तो वो किद्दां मैजर होएगा। अगर सानू ये पता लग गया कि करंट मैग्नेटिक फील्ड कित्थों आंदा है, करंट तो जिन्ना करंट होएगा नैचुरली उन्ना ही मैग्नेटिक फील्ड होएगा। सो असी अगर मैजर करना होवे कि किसी जगह ते कितना मैग्नेटिक फील्ड है, की करांगे असी उत्थे ये देखांगे कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, जिन्ना करंट होगा उन्ना ही उसका फील्ड होगा। क्लियर। सो अगर असी ये चीज़ नू कैलकुलेट करिए इनसाइड द कंडक्टर, मीनस विद इन द कंडक्टर, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर साडे कोल एक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, जो तुसी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। सपोज इस कंडक्टर के विचों करंट फ्लो कर रहा है आई, तो एरिया नंबर ऑफ टर्न्स कितनियां ने, एन ने, तो वो फील्ड कितना हो जाएगा, एन इंटू आई। तो इसनों असी डिनोट करते हैं एच दे नाल, मीनस एच इज इक्वल टू एन आई। एक ही है साडी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। क्लियर। तो यह तो बहुत सिंपल हो गया कि कितना करंट है कि किसी जगह पे वो देखना है, कितना फील्ड है वो भी देखना है। तो ये देख लो कि उत्थे करंट कितना है, जिन्ना करंट होया एक लूप दे विच एन करंट आई फ्लो कर रहा है। अगर बहुत सारिया नंबर ऑफ टर्न्स ने उत्थे कितना करंट फ्लो कर रहा है वो देखने के लिए उन्होंने नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये साडे कोल बन गई मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ठीक, बट एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं होती। अगर असी ये वैल्यू है जस्ट जदों फील्ड क्रिएट होया इनसाइड द कंडक्टर, विद इन द कंडक्टर, जदों असी किसी बाहर इथों कंडक्टर तो बाहर किसी पॉइंट पे देखांगे तो उत्थे यह वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, किसी फैक्टर दे नाल कट जाती है। क्यों? क्योंकि आउटर स्पेस दे विच जिहड़ा मीडियम है दैट इज़ फ्री स्पेस। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी रिड्यूस हो जाएगी, कितनी कट जाएगी, वो भी देखना पड़ेगा, वो भी मैटर करेगा। Not only at the point outside the conductor, even when at the moment it is created, after some time its value get decreased। जे असी गल करिए सोलोनॉइड की, ठीक है, सो इनसाइड द सोलोनॉइड इस चीज़ नू असी की नाम दिता है मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज बी, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि इनसाइड द सोलोनॉइड की है फ्री स्पेस है, सो फ्री स्पेस दे नाल इसका नाम दवांगे बी नॉट, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो उस केस दे विच की होएगा, जदों असी ये फ्री स्पेस लै रहे हां तो इसकी वैल्यू है जिहड़ी ओह रिड्यूस हो जाएगी। कितना रिड्यूस हो जाएगी? म्यू नॉट फैक्टर दे नाल। ठीक है, तो म्यू नॉट फैक्टर उरे की है परमिएबिलिटी। ये फैक्टर ऑलमोस्ट सिनोनिमस है जो तुसी इलैक्ट्रोस्टैटिक्स दे विच पढ़िया सी परमिटिविटी दे नाल, बट कुछ चीज़ां हमेशा डिफर करदियां ने इलैक्ट्रोस्टैटिक्स ते मैग्नेटिज्म दे विच।
सो ये जिहड़ा फैक्टर है ये रिड्यूस हो जाएगा, कितना रिड्यूस हो जाएगा क्वेश्चन सीगा, तो ये म्यू नॉट टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा जदों असी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जस्ट आफ्टर इट इज़ क्रिएटेड और एट एनी पॉइंट आउटसाइड दिस कंडक्टर। किन्ने फैक्टर नाल? म्यू नॉट फैक्टर नाल। सो इसनों असी लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई। सो जिहड़ा ये म्यू नॉट एन आई है दैट विल बिकम एक्चुअली द बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हुण सानू पता है कि जिहड़ा एन आई है दैट इज एच, सो इट विल बिकम म्यू नॉट एच। क्लियर? हुण इत्थे इन्ना सारिया टर्म्स का कुछ ना कुछ मीनिंग ज़रूर बनता है। ठीक है, की मीनिंग है देखो, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की है कि कितना फैक्टर वो रिड्यूस कर गया। जिस पॉइंट ते असी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की गल कर रहे सी वो कितनी रिड्यूस कर गई है जदों असी उसके मीडियम है जिहड़ा आउटसाइड द कंडक्टर देखिए जिथे फ्री स्पेस है, तो उसनों असी की कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एच। एच की है ओरिजिनल वैल्यू है, किसदी ओरिजिनल वैल्यू? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी थी जिहड़ी की क्रिएट हुई सी इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, म्यू नॉट की है जिन्ने फैक्टर दे नाल ओह इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है जिहड़ी ओह रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो बी नॉट की है साडे कोल ओ फील्ड बचिया जिहड़ा कि रिड्यूस होने दे तो बाद विच है, मीनस जिन्ने फैक्टर दे नाल साडी जिहड़ी वैल्यू है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की ओह रिड्यूस हो गई, क्योंकि एच इज इक्वल टू बी पॉइंट म्यू नॉट, जिन्ने फैक्टर दे नाल ओह रिड्यूस हो गई है। सो ये सी कॉन्सैप्ट मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का कि वो कितनी होती है। क्लीयर? तो इस तो पहला मैं थोड़े नाल डिस्कस किया सीगा मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो दोनों का मीनिंग एंटायरली डिफरेंट है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की सी कि किसी भी स्पेसिमन नू मैग्नेटिक फील्ड जो जो असी रखते हैं तो वो कितना मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, ये की है कि ओरिजिनल कितनी इंटेंसिटी होंदी है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जदों असी फील्ड है जिहड़ा साडा क्रिएट होता है। क्लीयर? सो दोनों टर्म्स ने जिहड़ियां वो बहुत डिफरेंट ने। सो नैक्सट असी डिस्कस करते हैं साडी थर्ड टर्म जिन्हों असी नाम दिता है मैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लक्स डेंसिटी। सो सब तो पहला असी उसनों डिफाइन करांगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स या फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन है जी वो हुंदी की है। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट है साडे कोल मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन या इसनों एक होर नाम भी दिता जाता है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसनों डिनोट करांगे डी दे नाल। क्लियर? सो सब तो पहला इसनों डिफाइन करते हैं, फिर इसका मीनिंग समझते हैं कि की है इसका एक्चुअली मीनिंग। ठीक है, सो राइट डाउन द डेफिनेशन। मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड is being equal to the force experienced कितनी फोर्स लगी to the force experienced by a unit positive charge moving
with unit moving with ਜਿਹੜਾ ਕਿ move ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ with unit velocity in a direction perpendicular to magnetic field. Unit velocity in a direction ਕਿਹੜੀ direction ਦੇ ਵਿੱਚ perpendicular to magnetic field. Magnetic field. Means magnetic induction या flux density की है किसी भी magnetic field दी equal होएगी किस दे equal कितनी force experience हुई है ਜਦੋਂ कोई unit positive charge move करता है with unit velocity ते direction केड़ी है perpendicular to the direction of magnetic field. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ. ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਲੌਰੈਂਟਜ਼ ਫੋਰਸ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਮੀਨਸ F = BQV sin θ. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ ਅ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ. ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ BQV. ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਥਰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ. ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਫੋਰਥ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. मैग्नेटिक susceptibility. मैग्नेटिक susceptibility की है. सो सब तो पहला इसनों डिफाइन करन दे लई असी डेफिनेशन पार्ट लिख के इसनों एक्सप्रेशन समझते हैं कि की है. मैग्नेटिक susceptibility of is the property is the property which determine is the property किसी भी magnetic material दी property which determine की determine कर दी है which determine how easily a specimen ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੈਸੀਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਮਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਨ ਬੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੈਸੀਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸੀਮਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿ ਇਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ? it is defined as the ratio ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ. ਇਹ ਉਹੀ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ. ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ. So it is defined as the ratio of
intensity of magnetization of a magnetic material, ratio of intensity of magnetization of a magnetic material जो भी ਅਸੀਂ पढ़ के चुके हैं, material to the magnetizing force applied, material to the magnetizing force applied। ठीक है, दोनों ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। इट इज I by H। I की है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ते दूसरा H की है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मीनस ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ओरिजिनल मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्रिएट हुई। क्लियर। सो इसमें ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी। क्लियर। सो ये सी साडी फोर्थ टर्म मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी। बहुत सारे मटीरियल होंगे जिन्हां दे लई इहदी वैल्यू पॉजिटिव होएगी या जिन्हां लई नेगेटिव होएगी। उस बेस दे उपर असी मटीरियल्स नू क्लासीफाई करांगे कि वह डायामैगनैटिक ने या पैरामैगनैटिक ने या फेरोमैगनैटिक ने। सो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो असी मैगनैटिक मटीरियल्स नू क्लासीफाई करना होवे। क्लियर। सो जो भी असी डिस्कस करांगे क्लासीफिकेशन तो इस टर्म का बार बार यूज़ करांगे। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो ਉਹਦੇ बेस ਤੇ ही असी डिवीजन करनी है कि कोई भी मटीरियल है जिहड़ा वो पैरामैगनैटिक है या डायामैगनैटिक है या फेरोमैगनैटिक है। क्लियर। सो लास्ट विच असी साडी लास्ट टर्म डिस्कस करांगे, फिफ्थ टर्म, ये सी मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी। लास्ट है साडे कोल परमीएबिलिटी। मैग्नेटिक परमीएबिलिटी की होती है। सो फिफ्थ वन इज मैग्नेटिक परमीएबिलिटी। या इसमें असी रिलेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो परमीएबिलिटी है यह दो सिमिलर क्वांटिटीज दी रेशो है। ठीक है। सो इसनों असी रिलेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि जो असी दो सिमिलर क्वांटिटीज नूं डिवाइड करते हैं तो वो की हुंदा है रिलेटिव कैलकुलेट करना। सो इट इज मैग्नेटिक परमीएबिलिटी, इसनों डिनोट करते हैं म्यू आर दे नाल, या मैग्नेटिक या रिलेटिव परमीएबिलिटी। सो की है रिलेटिव परमीएबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटीरियल ऑफ magnetic material is defined as the ratio of किस दी रेशो है, क्योंकि मैं तुहानू दस चुकी ये दो सिमिलर क्वांटिटीज दी रेशो है। रेशो ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ रेशो ऑफ नंबर of lines of किदिया number of lines of magnetic induction per unit area, lines of magnetic induction per unit area, per unit area, per unit area in that material, in that मटीरियल उसे मटीरियल दे अंदर पर यूनिट एरिया दे विचों किन्नियां मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रही ने, पहला वो लिख लो, डिवाइडेड बाय सेम थिंग जदों असी उस मटीरियल नू वैक्यूम दे विच रखीए, इन दैट मटीरियल टू द नंबर ऑफ lines of magnetic induction
of magnetic induction per unit area when ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ when that would placed in vacuum या medium ठीक है सो इसनों किदे नाल डिनोट करांगे म्यू आर दे नाल that will be equal to b vector upon b naught vector clear किन्नी फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया दे विचों पास कर रही सी प्लेस्ड इन वैक्यूम मीडियम या तुसी ओनू कोई भी फ्री स्पेस कह सकते हो ठीक है सो ये किदे इक्वल है जदों उस मटीरियल नू तुसी रखिया है किन्नियां मैग्नेटिक लाइन्स पास कर रही ने मैग्नेटिक इंडक्शन पर यूनिट एरिया जिहड़ी की हुंदी है फ्लक्स इन दैट मटीरियल टू द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन पर यूनिट एरिया जदों तुसी उसनू फ्री स्पेस दे विच रखिया है ठीक है क्योंकि हुण ये दोनों सिमिलर क्वांटिटीज़ दी रेशो है इसलिए इसके कोई भी यूनिट नहीं होंगे सो असीं इसनू एक होर तरह डिफाइन कर सकते हैं म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट परमीएबिलिटी इन मीडियम टू द परमीएबिलिटी इन फ्री स्पेस जिन्हों कि असीं यूज़ किया सी जदों असीं फर्स्ट सैकेंड डेफिनेशन दी सी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ठीक है सो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होंगी है 4 पाई into 10 raised to power minus 7 Weber per ampere meter इन्नी वैल्यू होंदी है इसकी फ्री स्पेस दे विच क्लीयर सो स्टूडेंट्स अज दे लेक्चर दे विच असीं डिस्कस कीतियां कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिन्हां दे बेस ते असीं किसी भी मैग्नेटिक मटीरियल्स नू क्लासीफाई करांगे ठीक है इन्हां नू ही यूज़ करांगे क्योंकि इन्हां दी वैल्यू दे नाल ही कोई भी मैग्नेटिक मटीरियल है जिहड़ा ओह शो करता है जिदा ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है वो डिसाइड करेगी कि मटीरियल केड़ा है ठीक है सो अज दे लेक्चर दे विच इन्ना ही नैक्सट लेक्चर दे विच मिलांगे ते स्टार्ट करांगे मैग्नेटिक मटीरियल दी क्लासीफिकेशन मीनस डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक की हुंदे ने ते इन्हां नूं असीं किवें क्लासीफाई कर सकते हैं ते इन्हां दीयां प्रॉपर्टीज़ की हुंदियां ने अज दे लई इन्ना ही थैंक यू सो मच।